महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातिकारी दारिता पदाचलम जगल्ये महाभये मृकुंड सूनु हर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे भयं तदम्बु वीक्षितं यदा मृकण्डुसूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भास्भि जन्म जम्भवादि दुख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी वर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नराम सुधारि पूजितम् सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य पुंजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्मादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानशेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम ततत्सु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंचि विष्णु शंकरम स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं शुभं श्रुतं महेश केश जातते किरात सूत वाडवेषु पंडिते शटे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकलामेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देव दुर्लभं महेश धाम गौरवम् पुनर्भवा नरा न वै त्रिलोकयन्त्रिरोरवम् त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे Thank you, ladies, for a beautiful rendition. I now request His Excellency Mr. C.V. George, Ambassador of India to Japan, to kindly deliver the opening address. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, officials from the Madhya Pradesh government, distinguished members of the Indian diaspora who have come here. I would like to start by welcoming each one of you who have joined here to welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, who is on a visit to Japan.
I had the honor to receive Honorable Chief Minister yesterday, and 2 days of very important meetings he has been attending with ministers, governor, senior officials of Government of Japan, and also with chambers and Japanese business community. As far as I recall, this is the first time a Chief Minister of Madhya Pradesh is undertaking an official visit to Japan. And I recall that in each of the meetings, we started by saying that Madhya Pradesh is the heart of India. It's a proud moment to see that Madhya Pradesh has come now to Japan to seek partnership. You all know that we have excellent relationship with Japan at every sphere, historical, cultural, civilizational. But one missing puzzle was actually Madhya Pradesh. Now, I'm very happy that during my tenure as ambassador, we were able to have that puzzle also filled in, and now we have a complete relationship between India and Japan. So I do not want to stand between Honorable Chief Minister and my dear diaspora. I would like to just thank each one of you for joining us today. It's a wonderful evening. I'm very happy that we could meet the community, and Honorable Chief Minister could meet the community when he is here. He has 2 more days of visit, which he would be doing in other cities of Japan. But as far as Tokyo is concerned, let me tell you, it has been a wonderful experience having spent 2 days with the Honorable Chief Minister and his team. So once again, I congratulate the Madhya Pradesh team for the excellent work, background work they have done to prepare for this visit. And we look forward to remaining in very close touch to continue our engagement between Madhya Pradesh and Japan. Thank you. Thank you, sir. We now have an audio-visual presentation on Advantage Madhya Pradesh. If you seek a land where infinite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place,
you know. With groundbreaking collaborations and strategic partnerships that drive global investment and innovation. From celebrating our heritage to building a sustainable tomorrow. अरे आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट आप कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। Global Investors Summit 2025, 24 and 25 February, Bhopal, Madhya Pradesh. I request Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to kindly address the audience. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर सीबी जॉर्ज साहब, श्री राजेश राजौरा सर, रोहित गंगवाल जी, मध्य प्रदेश के हमारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के यहाँ पे पधारे हुए लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग, मीडिया पर्सन्स और हमारे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को मैं मध्य प्रदेश की तरफ से नमस्कार कहता हूँ। मुझे पता है कि बहुत देर तक मुझे यहाँ खड़े नहीं रहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी सुनना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा न तो पॉलिसीज़ की चर्चा करूँगा न कुछ ऐसी बात करूँगा। मैं केवल मध्य प्रदेश वालों को मध्य प्रदेश याद दिलाने के लिए कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ मध्य प्रदेश गान से। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ, कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का है यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के निवासियों को मैं पुनः कहूँगा कि मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रदेश आपके हृदय में है। तो मैं आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश की धरती को हमेशा याद रखने के लिए मध्य प्रदेश में निरंतर आते जाते रहने के लिए इनवाइट करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय आएंगे तो और बेहतर लगेगा। मैं अपनी बात को वाणी को यहीं विराम देते हुए जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। Thank you, sir. We will now see another audio-visual presentation on the opportunities in tourism sector. When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. When the going gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail.
For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोलते समझ गए तो आठ, नहीं समझे तो मोड़ा नाट। आप लोग घूम रहे भेड़ा खा। And I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे. I now request Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, to kindly address the audience. आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन जापान राघवेंद्र सिंह जी, मिस्टर गंगवाल और मेरे सभी साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का जो बीड़ा उठाया और उसके लिए जो पिछले एक वर्ष में प्रयास किए हैं, वो प्रयासों से मध्य प्रदेश एक नए मार्ग की तरफ प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया और इसी क्रम में उनके द्वारा मध्य प्रदेश के सभी संभागों में रीजनल इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन किया गया। देश के अनेक मुख्य औद्योगिक केंद्रों का दौरा कर वहां के निवेशकों से 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशंस किए गए और जर्मनी, इंग्लैंड और जापान में निवेशकों को मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित करने के प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के विस्तार में जाने का अभी ये समय नहीं है, क्योंकि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ सुनने के लिए बेताब हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं इसलिए चाहूंगा कि इस विषय में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही हम सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. I would now like to request, on behalf of everyone, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav sir, to kindly address the audience. इन्वेस्ट एमपी के आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो मैं इसको दो तरह से मानूंगा। जापान में मध्य प्रदेश के हमारे मित्रों के साथ मिलकर के आप जो हम लोग करने आए हैं, वर्षों पहले आकर के आप वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने अपनी धरती छोड़ करके जापान को अपनाया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय राजदूत श्रीमान सीबी जाट साहब, SCS राजेश राजोरा जी, राघवेंद्र कुमार सिंह जी, रोहित गंगवाल जी, फ्रेंड्स ऑफ MP के संयोजक हैं और इसी अवसर पर आप सब मध्य प्रदेश वंशी कुटुंबीजन, आप सबका और भारतीय भी है ना,
मध्य प्रदेश वाले कौन कौन हैं? और मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन है? तो हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, उस शब्द का बड़ा मजा है, थोड़ा कठिन भी पड़ जाता है कई लोगों का। एक होते सगे और एक होते संबंधी, है ना? तो सगे और संबंधी में जो मजा है वो हमको एहसास होता है आप सबको देख करके, क्योंकि कोई भी विवाह प्रसंग आनंद का अवसर जब तक सगे संबंधी नहीं आए तब तक पूरा होता है क्या? कभी नहीं होगा। और इस शब्दों की महत्ता जब अपन घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो और उसका मजा आता है। वो जड़ों से जुड़ करके उस तरफ देख करके जो सुख का एहसास होता है, उस एहसास का अंदर से अनुभूति होने का क्षण भी यही है। आप सबने, कोई ने 2 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 20 साल, कोई ने 40 साल पहले अपने अपने वतन से छोड़ करके हम यहाँ एक परिस्थिति, व्यवस्था, विकास की संभावना, क्षमता, योग्यता का न्याय, ऐसे कई कारण से हम यहाँ आए हैं। और एक अच्छी बात यह है, अभी मैं पत्रकारों को इंटरव्यू भी दे रहा था तो ऐसे ही पूछते हैं कि भाई आप भारतवासियों के लिए क्या सोचते हो? वो संख्या उनकी बढ़ रही है तो वो कैसे, उनकी संभावना है। हमने कि भारतवासी जहाँ कहीं भी जाएंगे इनकी भूमिका सदैव एक जैसी रहेगी। जैसे दूध में शक्कर की भूमिका है, भारतवासी जहाँ भी रहेंगे उस भूमिका में रहते हैं, उनकी मिठास अपने आप आ जाती है, वो आनंद अपने आप मिलता है। ये किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, इनके अपने रहन सहन व्यवस्थाओं में हमारा दर्शन छिपा हुआ है और वो दर्शन इनको हमेशा उस अच्छाई से जोड़ता है जिसको हम अपने यहाँ कोई भी आयोजन करें, कोई कथा भागवत पूजन कराएं तो 4 शब्दों में हमारे लिए वो शब्द में अपनी पूरी जीवन शैली आ जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और तो इतना उदार तो विचार किसके पास है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। और जैसे विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हम अपने आप जहां जिस भी देश में है उसके साथ कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं और ये कल्याण की भावना ही हमको सदैव हर परिस्थिति में, इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात है, वो क्या बात है? वो एकमात्र बात है, क्योंकि हम मानवता से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए कई चुनौती आती, कई कठिनाई आती, लेकिन कठिनाई चुनौती किसको नहीं मिलती। लेकिन हमको मालूम है कि कोई उन कठिनाई चुनौती से पार हो न हो, लेकिन भरतवंशी तो पक्के में पार हो जाते, ये हमें भरोसा है। हर कठिनाई चुनौती के बाद भी अपने जीने के आधार पर, अपने इथिक्स के आधार पर, अपनी ललक के बलबूते पर। और अब का समय तो और आनंद का, जब नरेंद्र मोदी जी का समय है तो ये हमारे लिए अपनी उपस्थिति एक अलग प्रकार से दिखाई देती है। ये भी आप देखो, कभी तुलना करो 2 तरह से। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 साल में देश कितना बदल गया। 10-11 साल पहले, आप में से भी कई लोग 10-11 साल से पुराने भी होंगे, तो बड़ा कहीं अपन भारत से आए हैं तो ये बोलते बोलते अपने अंदर का कॉन्फिडेंस डावाडोल होता था। होता कि नहीं होता था? हमारे नेता भी आ जाए तो ठीक है, आए तो आए, न जाए तो जाए, हमको क्या करना है। और अब कभी मालूम पड़ जाए मोदी जी आ रहे हैं तो क्या होता है? झूम उठते हैं लोग, आनंद से सरावर हो जाते हैं, स्वाभिमान के साथ मुस्कुराने लगते हैं, उत्साह और उमंग का एक झरना बहने लग जाता है। अब हम तो उस परंपरा के डब्बे हैं, पीछे वो इंजन तो वो चल रही है। ये मोदी जी के जमाने का समय है ना।
राज्य के मुखिया का, राज्य की व्यवस्थाओं का, हमारी जो संघीय भारत की व्यवस्था है, और ये मेरे नहीं, हमारे लिए अतीत के काल से जब देश और देश के नेता जिस हाल में रहे होंगे, उस हाल में उस देश की सदैव अपनी पहचान रही है। नेता का स्वाभिमान, नेता का नेतृत्व, नेता की गतिशीलता, उसके पीछे पीछे अपने आप सब पे उसका असर आता है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे नेतृत्वकर्ता आप और हम सबके इस रूप में ही है, उनको भी कम चुनौती नहीं होगी, जैसे आपके साथ भी चुनौतियां बहुत सारी अलग अलग स्थान पे रही, लेकिन आपने रास्ता निकाला, आपने मार्ग बनाया। इसी प्रकार से आपने जो बनाया, आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेगी। कोई पेड़ लगाता है, फल कोई खाता है, लेकिन पेड़ लगाने के पीछे जो भावना रहती है वो फल में रस बन के निकलती है, वो मिठास देती है। तो ये जो हमारी सद्भावना है, ये अच्छा करने का जो संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि हमारे दर्शन में छिपी हुई है। कल हमारे राजदूत साहब से बात होकर ये बात निकली थी कि हमारे बीच में दुनिया के कई देश और कई संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया से हटके क्यों है, कैसी है? तो भारत की संस्कृति हजारों साल से कभी किसी देश पे आक्रमण करने की नहीं है। हमने किसी के देश की सीमाओं का समापन करके अपनी सीमा में मिलाने का कभी संकल्प नहीं किया। जो जहां है आनंद में रहे, जैसा रहे आनंद में रहे, लेकिन न तो कब्जा किया, न हड़पा, न लूटा, न खसोटा। लेकिन हमने अपनी बात कही कि हम अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। और विश्व गुरु जब बोलते हैं तो जो समझते हैं वो समझते हैं। राजदूत साहब ने भी तुरंत सब पकड़ ली थी बात कि हमारे यहाँ गुरु कहते ही केवल हम अपने कर्मकांड से गुरु को नहीं जोड़ते हैं। गुरु का अगर संधि विच्छेद करो तो आगे वाला शब्द गु मतलब अंधेरा, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग गुरु शब्द है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मतलब भारतीय मार्ग है। तो हमारी अच्छाइयों को हम अपने प्रकाश से आलोकित करना चाहते हैं। तो आप तो खुद सूर्य देश में बैठे हो, इससे अच्छी क्या बात है? जापान का तो राज चिन्ह ही वही है, जिसके आधार पर हम अपने संस्कृति को और नजदीक पाते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि हमारा अशोक चक्र और यहाँ का जापान के झंडे में के राष्ट्र ध्वज में लगा हुआ सूर्य चक्र, ये दोनों एक समानता है। सूर्य भी आलोकित रहता 24 घंटे। कोई कहता सूर्यास्त हो गया, वो हो गया, सूर्यास्त कभी नहीं होता, वो तो पृथ्वी की दिशा बदल गई। सूर्य तो जहां वहां आलोकित ही है। इसी प्रकार से अशोक के 24 चक्र 24 घंटे चलायमान दिखते, वो आलोकित ही होते, उनको कौन बिगाड़ता है, उनको कौन रोकता है? और उसी प्रकार से हमारे लोग भी आज के इस दौर में जब अपन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में बात करते हैं तो भारत में भी वो सब संभावना लगी, वो सब बातें हैं। और आप देखो बदलते बदलते एकदम से कहाँ हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, और 5वें नंबर पर आकर के अब हम सब किसी के लिए राह में मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर संख्या का, संसाधन का, व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ध्यान में तो आएगा ना कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतने प्रकार की अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं के बावजूद भी जैसे जापान के लिए बधाई देना चाहेंगे। आबादी कितनी है लेकिन आर्थिक व्यवस्था में कितनी अच्छी जगह पे। जर्मनी की आबादी कितनी है लेकिन आबादी की बजाय आर्थिक रूप से कैसे अच्छी जगह पे। तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से, आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें,
उस आनंद में भी रहे, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ के प्रति भी वफादार रहे। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूँ, अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चलना है और जड़ों से जुड़ करके हमको अपने देश की प्रगति से न केवल उसमें अपने योगदान देना है, बल्कि भावी पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से समृद्ध करना है, उनको उस भाव से अपने साथ रखना है, जिसके कारण से दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो भारत की ये छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाते। बहुत सारे प्रकार से भारत के ऐसे कई रहस्य, उसमें परिवार परंपरा भी है, कुटुंब परंपरा भी है, संस्कार परंपरा भी। इन सारी बातों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको भारी नहीं करूंगा। आप जरा आज विनोद के उसमें आए हैं, थोड़ा अपने लिए आनंद के लिए इस मौका का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप मध्य प्रदेश में, जब मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आया हूं तो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जो यहाँ आया है, तो मुझे लगता है देर हो गई, थोड़ी माफी चाहता हूं और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। तो जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है, जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है, लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास आबादी है, यहाँ आबादी की कमी है, अच्छे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है, या तकनीकी छोड़ो तो सामान्य काम करने वालों की भी कमी है। तो हमारे पास में एक तो मैन पावर जो है, इस मैन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कौन से एरिया में वो 7,000 वाला आबादी का सबसे बड़ा इलाका, खुश होते रहते हैं, है ना? तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला, उनने सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से, मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके, परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के, प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूँ तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं? हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे, जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल दो, धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना।
वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए, और गुजरात वालों के लिए भी उतने ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है और उसकी आत्मीयता बढ़ रही है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको जापान में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान देखो, आप अपने आप ही आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने क्या करा? हमने तो सब कानून कायदे का ही पालन करा। बदलते दौर में आज के समय में भारत अगर सीना तान करके खड़ा हो रहा है तो उसमें ये स्वाभिमान भी है कि हाँ, हम अपने सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन उससे बड़ी गर्व की और क्या बात है? उससे बड़ी गर्व की ये बात है कि अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे समृद्ध काल में जी रहा है। लोकतंत्र का मतलब शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी समृद्ध सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बना हुआ मंत्रिमंडल और समर्थ मंत्रिमंडल, जो अपने सभी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के समाधान भी जानता है और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण करने वाली सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। उस संस्था की इज्जत बचाए रखने में भी हमारा लोकतंत्र सक्षम है। ये इतना बड़ा उदाहरण है, केवल आप में से कई लोगों की आंखों के सामने गुजरा होगा। बहुत कम लोग होंगे 20-30 साल से कम वाले, अधिकांश लोगों के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1984-85 में भी फैसला दिया था, लेकिन हमारी राजसत्ता कमजोर थी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदलना पड़ा था 3 तलाक वाले घटनाक्रम से। लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश ने, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मतलब कितनी अच्छी बात लगती है कि वो जो सज्जन जिनने 75 साल तक अयोध्या के खिलाफ, अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उनने एक ही शर्त रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो हम भी खड़े हो जाएंगे। और ये कितना अच्छा रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो खुद भी भूमि पूजन में मौजूद थे। जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में मुस्कुराए तब भी वो मौजूद थे। तो ये उनका मौजूदगी का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण अपने पूरे देशवासियों को गर्व करने का है। कई कारण से अतीत में कई बार इसी कारण से आजादी के बाद अपने बीच में धर्म के आधार पर झगड़े करवाए, जिन जिन के जो जो स्वार्थ थे उनके कारण कराए। लेकिन आज देश समर्थ होकर ये बात को समझ गया कि नहीं, हमको अपनी व्यवस्थाओं पे विश्वास करना है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो आप बताइए, कोई कील भी गिरी क्या? किसी को तकलीफ आई क्या? कभी भी कोई परेशानी आई क्या? इतना बड़ा देश, इतने प्रकार से उसकी चिंताएं रहती, लेकिन न केवल राम मंदिर में बल्कि कोविड के समय भी वही आनंद रहा। कोविड जैसे समय पे अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चैलेंजिंग था, लेकिन कोविड के समय में यहाँ तो लॉकडाउन नहीं हुआ। आप तो इतने समर्थ देश में थे, फिर भी यहाँ लॉकडाउन करने में भगवान की एक अलग कारण से बच गए, अलग बात है। क्वारंटाइन किया, कुछ आवश्यक सावधानी रखी, लेकिन जापान जैसे कम आबादी के देश में भी लॉकडाउन को लेकर के इसको छोड़ा गया था। जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में आप बताओ, कोई सोच सकता था? और क्या क्या बंद नहीं किया। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं कि भगवान ने अच्छा करा उस समय, लेकिन आपने बंद क्या क्या कर दिया। रेल बंद, बस बंद, सब प्रकार की व्यवस्था, आवागमन बंद। मैं मंत्री था उस समय, तो मैं भोपाल से उज्जैन इंदौर निकलता, पूरा रास्ते पे सन्नाटा। शुरू में तो हमने भी बोला कि भैया चाय पोई की दुकान तो खुलवा दो, रास्ते में चले तो 4 घंटे तक कोई मतलब ही नहीं जाने आने का, पानी पिलाने वाला भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं, सब साफ सुनसान सन्नाटा। ये जो हमारे सारे पहिए जाम, कोई कुछ नहीं। फिर 1 महीने 2 महीने बाद पहली बार देखा कि ट्रक से केवल जिनको अपनी परिवहन करना था उसको बड़ी मुश्किल से, वो भी केवल जीवन उपयोगी चीजों को लेकर के। और तो और आकाशवाणी के गाने तक बंद कर दिए। गाने में क्या दिक्कत है, मैं तो आज तक नहीं समझ में आया। अरे गाने ही तो बज रहे थे रेडियो में भी वो बिल्कुल लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन तो पहली बार देखा कि जो जहां सब बंद कर दो। तो ये वाकई, लेकिन देश ने उतनी कठिन परिस्थिति में भी
रास्ता निकाला। इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का ये जो भाव था, बोलने वाले भले बोले जो बोलना हो, लेकिन ताली बजाई थाली बजाई पर सबको सुरक्षित तो रखा ना। हमारी तो कठिनाई ये थी कि इतने हॉस्पिटल ही हमारे पास नहीं थे, इस प्रकार के प्रबंध नहीं थे, तो करते क्या, कैसे बढ़ते। मुझे मालूम है कि मैं अपने प्रभार का जिला मेरे पास उज्जैन था, तो उज्जैन के आसपास का उदाहरण दूंगा तो पूरा प्रदेश समझ में आ जाएगा या देश समझ में आ जाएगा। अब उज्जैन हमारे संभाग के रीजनल स्तर पे जार साहब वो सेंटर में है। अब सेंटर में होने से हमारे जिले के जितने भी लोग हैं 90% सब उज्जैन में इलाज कराने आते थे। तो उनकी तहसीलों में कोई इसके प्रबंध नहीं थे कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वेंटिलेटर नहीं, बाकी व्यवस्था आईसीयू एक भी नहीं थे। अब जब हमको पहले दौर के बाद दूसरे में लगा कि और बढ़ेगा, फैलेगा, खतरनाक है, तो हमने कहा कि भाई जरा, मेरा एक मित्र विधायक थे महिदपुर में, तो हमने कहा आप भी अपने थोड़ा हॉस्पिटल के प्रबंधन कर लो टेम्परेरी। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बीमारी नहीं है, यहाँ कुछ होते ही नहीं है। क्यों? तो मैंने कहा मेरी जानकारी में था। मैंने कहा क्यों, महिदपुर में क्यों नहीं जरूरत है? बोले यहाँ कोई नहीं, यहाँ से जितने सब उज्जैन में भर्ती होते तुम पढ़ाओ वहां पे, हमको क्या लेने देना। मैंने, आप कल्पना करो विधायक साहब कि उज्जैन की बाउंड्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा और आपके मरीज को अगर महिदपुर से बाहर नहीं जाने को जगह मिली और वो तड़फ के मरेगा, तो आप उस दिन की कल्पना करो। तो बोला अच्छा ऐसा भी हो जाएगा क्या, उज्जैन में पूरी जगह भर जाएगी? क्योंकि अंदाजा ही नहीं था लोगों का। तो ये सब दूर हुआ था कि जहां कोई बस स्टैंड, उनके बस स्टैंड में था, हमने बस स्टैंड को आपातकालीन हॉस्पिटल के रूप में उसको उनकी वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की लाइन वाइन डाल डोल करके वहां प्रबंधन कराया। कैसे करके भी जान बची, ये वो कठिन दौर था। अभी आज दोहराना थोड़ा अच्छा नहीं, लेकिन इतना ही कह रहा हूं कि ये बदलते दौर में भारत ने अपनी सब तरफ से अपनी सारी चुनौतियों को पार किया। अब पार करने के लिए जब अमृत काल का संकल्प है माननीय मोदी जी का कि अपने लिए, अपनी पीढ़ी के साथ अपन ने जिस दौर में आए वो स्वाभिमान की दौर है, ऐसे में सब प्रकार के लिए अब ये मैं आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से इनने बताया नहीं, कई सारी चीजों में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मध्य प्रदेश की यूनिट ने आज अपने यहाँ जापान के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे धनी आदमी, क्या नाम था उनका, है यूनिक है ना। अब वो 75 साल की उम्र में भी, हम कोई कारण से लेट हो गए तो 40 मिनट भी लेट होकर के, लेकिन वो मिल के गए और बाकायदा होमवर्क करके आए थे। और इतने पक्के वाले थे कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का उनका पूरे देश में, दुनिया में बड़ा कामकाज है। और चूंकि उनने अपने ढंग से सबका अध्ययन किया, चीन जैसी जगह पे भी उनके 3000 से ज्यादा आउटलेट, उनके बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर में बड़ा उनका अपना कामकाज फैला हुआ है। फिर उनने और बताया कि मेरे एक साथ वाले, उनका भी ये काम है, लेकिन वो थोड़ा सा केमिकल के और दूसरे काम भी कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बोले मुझे इस बात का भरोसा है कि इसमें सबसे अच्छी संभावना भारत में और मध्य प्रदेश में, तो मैं आपके यहाँ के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी करके आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ। हमारे से ज्यादा वो जान रहे थे हमको। फिर हमारे लोगों ने अपनी बात करी, समझाने का प्रयास किया। अब जब उनको एक बात पूरी समझ में आई और उस पर तो पहले ही हमसे ज्यादा समझ के वही तैयार बैठे थे। फिर हमारे पीएस ने कहा कि जरा वो साथ में एक और आए, वो केमिकल का काम करते हैं, तो इनने कहा जरा केमिकल पे भी हमारी पॉलिसी है ये वो। तो उनने रोक दिया, ठहरो, एक जगह ध्यान मत भटकाओ, जिधर आ रहा उधर ही आने दो, पहले इसी पे चलो, दूसरा धाई में मत करो। ये बिजनेस का तरीका है। इसको अपने यहाँ बोलते हैं ना, आधी मिले न पूरी, क्या बोलते हैं, आधी मिले न पूरी पावे। मालूम पड़ा कि जो है वो भी जाएगा। तो बोले आप तो एक ही लाइन पर हो, जो हो सकता है उसी पे बात करो। तो जो वो 75 साल की उम्र में भी अभी इतने उत्साह और उमंग के साथ भरे पड़े और अपने देश की इन सारी बातों को जानते समझते हुए व्यापार व्यवसाय के रास्ते निकाल रहे हैं। तो अब उस उम्र वाले भी निकाला तो अच्छी बात है, पर बाकी लोग तो अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि ना आना चाहिए। इस उम्र में तीसरे देश जाकर के वहां अपनी बिजनेस की संभावना ढूंढ के खड़े हो रहे हैं और इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो आज अपने बीच में एक इतना अच्छा मौका है कि जब हम अपनी सारी पॉलिसियों को बता रहे हैं। अब ये बताओ, कभी रेडीमेड गारमेंट्स की पॉलिसी का अकेले मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी आप में से यहाँ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये बहुत धनी देश है, संपन्न देश है,
सक्षम एजेंसियां हैं, लेकिन आपको कोई यहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रति व्यक्ति सरकार के द्वारा इंसेंटिव कोई पैसा दे रहे हैं यहाँ पे? सरकार के द्वारा किसी भी एजेंसी को, किसी व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पे? आप तनख्वाह पारोगे 15,000, 20,000, 50,000, तो लेबर को लेती है ना। देखो, अब आपको मैं बता रहा हूं, अपने यहाँ भारत में मध्य प्रदेश के अंदर अगर अपना कोई परिवार का बच्चा रेडीमेड गारमेंट्स, अकेले उज्जैन के उदाहरण देता हूं, ये हमने प्रदेश भर में किया है, वो रेडीमेड गारमेंट्स पे कपड़े को केवल सिलाई मशीन पे सीने के लिए बहनें आएगी काम करने, तो मान लो 12,000, 15,000 तनख्वाह है, तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपया प्रति लेबर को 10 साल तक देने की गारंटी दे रही। काम कर रहे हैं फैक्ट्री वाले के यहाँ, पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही। फैक्ट्री वाले का काम, फैक्ट्री का वो अपना प्रोडक्शन से, उत्पादन से कमाए खाए, वो अपना काम करे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे रोजगार परक इंडस्ट्री चलाए। इसके पीछे भाव क्या है कि केवल मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, मशीनीकरण के पहले रोजगार चाहिए। तो रोजगार परक ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए ये सेक्टर में बता रहा हूं जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स में, और केवल इसमें 5,000 रुपये लेबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम वो जमीन की रजिस्ट्री करा रहा इंडस्ट्री की, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट दे रहे हैं। बिजली अगर कमर्शियल 8 रुपए में पड़ रही तो हम 10 साल तक 4 रुपए में दे रहे हैं। एक से सब मिला करके वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में 200% की छूट दे रहे हैं, 100 तो कम पड़ रहा है। अब बताओ, इससे बड़ी कोई बात होगी क्या? तो आज के समय में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये एक उदाहरण बताया। ऐसे सब प्रकार की चीजें मैं बहुत सारी बता सकता हूं। तो ये वर्तमान के समय में हमारे पास जो हाथ में है, उस हाथ में होने से ज्यादा अपने दिमाग में है। तो दिमाग का उपयोग करते करते, हल्दी तो ज्यादा ही खाते भारतीय, सबको समझ में आती है, पेट भी सही रहता, दिमाग भी चलता है। ये अपना आयुर्वेद का नुस्खा घर पे जो आता है, परमात्मा की दया से बदलते दौर में ये सारी बातों की बहुत अनुकूलता है। ऐसे हर सेक्टर में कोई सेक्टर नहीं बच रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में अब हमने तो ये प्लान कर लिया है कि हमारे, आपको एक आंकड़ा बताऊंगा अभी, जिस पे हमने टेंडर लगवा दिया। हमारे पास 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लेके 2004-5 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही, तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे। कितने थे? 5। लेकिन जैसे हमारी सरकार 3-4 बनी, पहले उमा जी की, फिर बाबूलाल गौर की, और बाद में शिवराज जी की, तो हमने ये 20 साल, मतलब 2023 में जब मेरी सरकार, अपनी ये सरकार ने दायित्व लिया, तो इसमें 14 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए और 13 प्राइवेट हो गए। तो 14 और 13 कितने हो गए? 27, और 3 हमने लोकार्पित कर दिए। तो ये एक तरफ पूरे 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और कहा 20 साल में 30 मेडिकल कॉलेज, और 30 के बाद अभी हमने प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज लगवाए। तो उसमें नियम ये बनाया कि हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज वो डाल दे। तो जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल डालेगा तो 24 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर हो जाएंगे। तो अकेले मध्य प्रदेश में हमारे पास 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो आप बताओ, 22 साल में 50 मेडिकल कॉलेज और 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। अब दोनों का तालमेल करके देखो। और ये एक सेक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर बता सकता हूं। हमारे यहाँ बिजली, अब बिजली के लिए अपनी बात निकलती है, तो बिजली के एक 5 हाउस पावर पे कनेक्शन पे हमको 53,000 की सब्सिडी देना पड़ती। किसान से 7,500 लेते हैं। हमने कहा ये 2-3 साल में वो 7.5 भी नहीं लेंगे, बल्कि सोलर पंप पूरा दे देंगे, पूरा तुम बिजली फ्री रखो, बल्कि मीटर लगा लेंगे। आपके पास ज्यादा आए तो सरकार और खरीद लेगी। अब इसके 2 फायदे क्या होंगे? एक फायदा क्या होगा कि जो हमारी सब्सिडी हर साल जाती है वो बंद हो जाएगी, किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो इसके चक्कर में हमारी सरकार का लगभग 15,000 रुपए प्रति साल का जो लॉस होता है वो बजट में वो बच जाएगा। तो कुल मिला के कदम कदम पर इतने सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतनी सारी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर ये व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी, आपके परिवार में भी बदलाव आने की दृष्टि से भी, बदलते समय में हम सब इनको खुली आंखों से देखें, इसको लागू करें। और इसीलिए आज अपने इन सब बातों को लेकर के अब लीडरशिप का भी काम बदल गया।
केवल नेता बनकर के हम हाथ हिलाएं, भाषण दे के चले जाएं, ये समय नहीं है। माननीय मोदी जी के समय का सदुपयोग करना है। तो आज अपने पास दिन भर में इन्होंने भी मेरी बिल्कुल आज मान के चलो कि चाय पानी के लिए भी नहीं छोड़ा, सुबह से रगड़ रगड़ के इतना जबरदस्त खींचा है। लेकिन इसका भी सुख है कि जब हम लीडर बनते हैं तो माननीय मोदी जी को देखना पड़ता है। आदर्श कौन है? मोदी जी है। और जब मोदी जी आदर्श बनते हैं तो हमारे को अपने देश पे गर्व होता है। तो जब अपने लिए कोई नेता नेतृत्व करने वाला इतना सेक्रीफाइस करता तो बाकी को प्रेरणा मिलती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम भी अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर बदलते दौर में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो हम में से सब मिलकर के अपने देश के लिए भी और जहां रहे उसको भी बढ़ाते रहो। जापान को भी आगे बढ़ाओ, अपना देश भी आगे बढ़े। ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for an inspiring address. I now request Mr. Rohit Gangwal, Coordinator, Friends of Madhya Pradesh, to present the closing remarks and vote of thanks. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी बात बोली, मुझे लगता है कि कुछ तो आपके पल्ले पड़ी होगी और भेजे में आया होगा और ये आप सब लोगों को बताएंगे भी। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। It's truly an honor and privilege to deliver vote of thanks on this special event. I would like to express my deep gratitude for everyone who has contributed to the success of this event. मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश को प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में यूके और जर्मनी की सफल यात्रा के बाद उन्होंने अपने कदम जापान की ओर बढ़ाए हैं और उनका यह प्रयास मध्य प्रदेश को आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपके इस प्रतिबद्धता से प्रदेश को नई ऊंचाइयां मिल रही है। समाज का हर वर्ग, युवा हो, किसान हो, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी गौरवान्वित उपस्थिति से इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यही कहना चाहूंगा, हर मुस्कान में झलकता है आपका प्रयास, हर मुस्कान में झलकता है आपका प्रयास, हर गांव, हर गली में दिखता है विकास। आपके नेतृत्व ने प्रदेश को दी नई आस। हम हृदय से करते हैं आपका आभार और पूर्ण विश्वास। I also want to express my sincere thanks to His Excellency Ambassador Mr. C.B. George, Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh, Shri Raghvendra Singh Ji, Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, and all esteemed officials of Government of Madhya Pradesh, MPIDC, and CII for their invaluable support. मैं हमारी आयोजन टीम के सदस्य रोहन अग्रवाल जी, FOMP के जापान के कोऑर्डिनेटर और बीजेपी के एशिया पैसिफिक के कोऑर्डिनेटर ज्ञानेश्वर गुप्ता जी और सभी साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। Finally, a big thank you to our wonderful Indian diaspora and Madhya Pradesh diaspora. एक बार जोरदार आप अपने लिए भी तालियां बजाइए। Your enthusiasm, participation, and unwavering support is source of energy and strength for us. Your presence here highlight the strength of our shared heritage and a bright future we can build together.